discussing about characteristics and concept of monopolistic competition कि monopolistic competition आखिर होता क्या है, उसके क्या क्या characteristics हैं, क्या क्या features हैं. So that is what our today's video is going to be about. So let's start without any further. पहले we will see कि what is the actual meaning of monopolistic competition, and then after we will discuss characteristics or features of this monopolistic competition. So what does concept say? Monopolistic competition, this concept of monopolistic competition, which is a leading type of imperfect competition. Now what is imperfect competition? There are basically two branches of competition. The very first is perfect and second one is imperfect competition. In perfect competition there is only one market, that is itself perfect competition, and in imperfect competition there are basically three types in it. सबसे पहले we have monopoly, then after we have monopolistic competition, and then after we have oligopoly. So we have mainly two markets, that is perfect and imperfect. Perfect के अंदर perfect competition itself and imperfect के अंदर monopoly, monopolistic and oligopoly. I hope this concepts are clear to all of you guys. And आगे पढ़ लेते हैं. Which was developed by American economist. So who developed this concept of monopolistic competition or imperfect competition? That was developed by American economist Professor E.H. Chamberlain in his book. Now what was the name of his book in which he have given the information of all of these market? So the theory of monopolistic competition. Let's read again. The concept of monopolistic competition, which is a leading type of imperfect competition. It is a leading, that means it is much more relevant and real in today's world. And this competition was developed by American economist Professor E.H. Chamberlain in his book The Theory of Monopolistic Competition. The concept is more realistic than the concept of either pure competition or pure monopoly. Here it says that this concept of monopolistic competition is much more relevant and much more realistic when we compare it with our real today's world. And according to Professor Chamberlain, in real life there prevails neither pure competition nor pure monopoly, but a blending, or you can also say mixture of both competition, that is monopoly, and perfect competition, which he calls as monopolistic competition. तो देखो अब मैं हिंदी में बता देती हूँ. यहाँ पे बेसिकली बोला क्या गया है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या एक्चुअली. तो ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कंपटीशन है आज के ज़माने में. क्यों? क्योंकि दोनों का मिक्सचर है. दोनों कौन से? एक तो प्योर कंपटीशन, दैट स्टैंड्स फॉर परफेक्ट कंपटीशन, एंड मोनोपोली. मोनोपोली में हम, अगर आपको ये लगता है कि हम कंपटीशन क्यों नहीं बोलते मोनोपोली कंपटीशन, तो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें सिंगल सेलर ही होता है. तो कंपटीशन किससे करेगा? इधर तो क्या है, प्योर परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन में क्या है, बहुत सारे सेलर बायर होते हैं तो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं. एज वेल एज इन मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं लेकिन बायर बहुत सारे होते हैं, तो एक दूसरे से क्या करती है, फर्म्स compete करती है. इसलिए हम मोनोपोली में कंपटीशन वर्ड नहीं लगाते आगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलेन, रियल लाइफ प्रिवेल्स नाइदर प्योर कंपटीशन और प्योर मोनोपोली. MRTP मतलब कोई भी ऐसी फॉर्म को वो नहीं आने देती है जो कि मोनोपोली बन जाए. गवर्नमेंट क्या करती है, उनका हस्तक्षेप रहता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, जिस वजह से कोई भी फर्म की मोनोपोली नहीं हो पाती है. नहीं तो क्या करेगी वो फर्म, जितना मर्जी हाई प्राइस चार्ज करे वो कर सकती है. इस कारण की वजह से गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है इधर. इन शॉर्ट इट इज अ मिक्सचर या फिर ब्लेंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोली. दोनों का मिक्सचर है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है दोनों का मिक्सचर है. दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके ये जो नया बना है हमारा मोनोपोलिस्टिक, ये ऐसा है कि इसके अंदर दोनों के फीचर हैं. कौन से दोनों के? तो एक आता है परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकेंड वन इज मोनोपोली के. ये आपको याद रखना है, आप आंसर में इस पॉइंट को लिख सकते हो. देन क्या लिखा है, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं फीचर्स. जिसको हम बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार. एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी फर्म्स एंड सेलर. बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कुछ कुछ हद तक प्रोडक्ट डिफरेंट है एक
एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है कुछ कुछ हद तक। एग्जिस्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है सेलिंग कॉस्ट। डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने सेकेंड पॉइंट में यहाँ देखा कि कुछ हद तक डिफरेंट प्रोडक्ट रहते हैं तो प्राइस भी थोड़ा डिफरेंट चार्ज करती है फर्म अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू पीपल प्रेफरेंसेस, उनकी गुडविल क्या है, उनकी पैकेजिंग कैसे हो रखी है, कितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा उन्होंने खर्च करा है, ये सारी कुछ चीजें के लेके वो अपनी प्राइस डिसाइड करती है एंड कुछ कुछ हद तक डिफरेंट रहते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरह यहाँ पे प्राइस सेम नहीं रहता है और ऐसा भी नहीं रहता कि बहुत ऊपर नीचे है प्राइस, कई हद तक सेम रहता है लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट में कुछ कुछ जगह डिफरेंट रहता है। कंट्रोल ओवर प्राइस, थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल कह लो, उनका थोड़ा जो है फर्म का कंट्रोल रहता है प्राइस को डिसाइड करने में। ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जल्दी से एंट्री हो सकते हैं, जल्दी से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो आपको ये पढ़ के लग रहा होगा कि तो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली जैसा थोड़ा थोड़ा इसका वो है, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यही मैंने आपको बताया अभी कि ये दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे दोनों से, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ चेंजेस हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी फर्म्स एंड मेनी सेलर्स, क्या लिखा है, बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे लिखा है सेलर हैं, दोनों का मतलब वही है, सिर्फ नाम मैंने बदल दिया है। We have seen that under condition of perfect competition there are a large number of firms. हमने ऑलरेडी देखा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, उसमें हमने ये जाना कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स रहती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी रहते हैं जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड मोनोपोली में क्या होता है कि सिर्फ एक ही सेलर होता है जो कि है प्रोडक्ट को सेल करता है, विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, उसके कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते। हमने यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन करा है। देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट। दूसरी लाइन में हमने ये लिखा कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अलावा मोनोपोली का एग्जाम्पल लिया। मोनोपोली में क्या है कि एक ही सेलर है जो कि क्या सिंगल सेलर है, उसकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं नहीं मिलता, इसकी वजह से उसकी मोनोपोली है। लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तो इन दोनों में से फर्क है क्या इसमें एक्चुअली, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि देयर आर मेनी फर्म्स वर्किंग इन द इंडस्ट्री, है तो बहुत सारी फर्म्स लेकिन each of them producing differentiated products which are relatively close substitute for each other। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह वो बिल्कुल बिल्कुल सेम नहीं है। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि प्रोडक्ट क्या है, टोटली आइडेंटिकल, टोटली सेम है, बिल्कुल एकदम डिट्टो सेम होते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, सिमिलर होते हैं लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। यानी कि कंज्यूमर जो है वो ऐसा नहीं करता है कि बिल्कुल ही कोई भी दुकान में जाके कुछ भी खरीद लेगा, नहीं, उसके कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से कंपेयर अगर हम करें, जैसे लक्स एक साबुन है और एक विवेल है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, पैकेजिंग का है, फ्रेग्रेंस का फर्क है, डिजाइन का है और कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी इधर रोल प्ले करता है। लेकिन इधर हमने ये बोला है देयर आर मेनी फर्म्स, जैसे बहुत सारी फर्म है, सोप इंडस्ट्री ले लो तो फर्म्स तो बहुत सारी है ना, बहुत सारी होती हैं, विवेल है, लक्स है, डेटॉल है, फिर और कौन कौन सी होती है, फियामा जेल आता है, अलग अलग चीजें आती हैं। तो इसमें क्या है, कुछ कुछ हद तक डिफरेंशिएशन भी है, कुछ कुछ हद तक सेम ही है, मतलब एट दी एंड तो साबुन का ही रोल प्ले कर रहे हैं ना। तो कंज्यूमर को क्या लगता है कि ये मेरी प्रेफरेंस है, इसकी वजह से मैं चूज कर रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ बोला है कि दोनों है तो डिफरेंट चीज लेकिन एट द एंड रोल सेम प्ले करते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, there are many firms working in the industry, each of them producing differentiated product which are close substitute for each other। close substitute है, ध्यान रखना, perfect substitute नहीं है, यानी कि replace नहीं कर सकते एक दूसरे को। एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखा है, the restaurant industry where there are many different established serve food but none of dominates, यानी कि no one dominates the market। यानी कि बहुत सारे रेस्टोरेंट भी होते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें बेच रहे होते हैं, लेकिन एट दी एंड पनीर की सब्जी मैं इधर खाऊं या उधर खाऊं ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी ना,
पनीर तो डला ही रहेगा उसमें। लेकिन इधर होता क्या है कि लोग अलग अलग रेस्टोरेंट जाना प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, एम्बियंस अच्छा होता है, किसी की डेकोर अच्छी होती है, इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छी होती है, ये सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी फर्म एंड मैनी सेलर, बहुत सारे सेलर होते हैं। देन वी हैव इन द अदर वर्ड्स, ओके और भी है इधर, इन द अदर वर्ड्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देर इज ए फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स बट नॉट सो लार्ज एज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हाँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हैं, और इतने कम भी नहीं है कि मोनोपोली की बात हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, एक मीडियम है। मीडियम हम बोलें तो सही रहेगा, मीडियम सेलर्स हैं, यानी कि लार्ज है लेकिन इतने लार्ज नहीं है जितने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है, और इतने कम भी नहीं है जितने मोनोपोली के अंदर है, जितने मोनोपोली के अंदर है। क्योंकि मोनोपोली में तो क्या है, एक ही सिंगल सेलर रहता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकेंड फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी वजह से ही तो है। अगर बिल्कुल सेम होते परफेक्ट कंपटीशन के जैसे, तो ये नया जो मार्केट आया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो आता ही नहीं। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर चैम्बरलिन, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच मेक्स इट ए ब्लेंडिंग, यानी मिश्रण, विच मेक्स इट ए ब्लेंडिंग of perfect competition and monopoly is the differentiation of product। दोनों का मिश्रण है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का। यहाँ पे मैंने लिखा ही है कि ब्लेंडिंग है दोनों का। दिस मीन्स दैट द वेरियस फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोड्यूस नॉट homogeneous or identical product but differentiated products which are closely related to each other, that is which are close substitute for each other but are not perfect substitute for each other, they are distant substitute। यहाँ पे बेसिकली ऊपर वाली बात यहाँ घुमा फिरा के बताई है। क्या बोला है? प्रोफेसर चैम्बरलिन जो थे अमेरिका के, उन्होंने ये बात बोली कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक दोनों का मिक्सचर है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक मोनोपोली का। इधर जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं। होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब सिमिलर, बिल्कुल डिट्टो 100% सेम प्रोडक्ट नहीं सेल होते हैं। कुछ कुछ जगह फर्क होता है, कुछ कुछ जगह डिफरेंट होते हैं प्रोडक्ट्स। डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट मतलब एक ऐसी चीज जो कि पूरा सेम नहीं है, कुछ फर्क है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अब जैसे किसी को कार लेनी है तो कार का फंक्शन बेसिकली है क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन इसमें फर्क क्या आ जाता है, किसी गाड़ी की सर्विसिंग, आफ्टर सर्विसिंग अच्छी होती है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है, किसी का कुछ फीचर अच्छा होता है, कोई ज़्यादा माइलेज देती है, कोई ज़्यादा एवरेज देती है, किसी का डिज़ाइन अच्छा होता है, किसी की गुडविल अच्छी होती है, किसी का क्या है ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से लोग चूज करते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन सबका सेम है लेकिन क्या है, सब डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है एक्चुअली। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। लिखा 2 है लेकिन एडिशनल 3 है, तो हम गिन के चलते हैं, टोटल 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, in the first place, product differentiation is based upon characteristics of the product itself, such as exclusive trademarks, trade names, patent features, special types of attractive packaging and wrapping of difference in quality, design, color or style of the product also brings about such differentiation। सबसे पहला क्या बोला है कि प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट किन किन कारणों की वजह से होता है। तो लोगो है वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग हो सकता है। यस, BMW का जो लोगो है और जो जैगुआर कार का लोगो है वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, उनके फीचर्स अलग होंगे। किसी में कुछ अट्रैक्टिव थिंग होगी कि दूर से देखने पे वो गाड़ी अच्छी लगती है हमें। अलग अलग फीचर, अलग अलग डिजाइन होती है, लोगोस होते हैं, कलर होता है, पैटर्न्स होता है। ऐसे ही अगर हम दूसरी चीज की बात कर लें, एक आपके पास है सिंपल हैप्पी बर्थडे वाला कार्ड, दूसरा आपके पास है अट्रैक्टिव क्रिएटिव सा कार्ड। तो किसी किसी को सिंपल मिनिमलिस्टिक कार्ड अच्छा लगेगा, किसी किसी को क्रिएटिव अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, सबसे पहला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे करते हैं हम? ट्रेडमार्क पे, ट्रेड नेम, पेटेंट, फीचर्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव पैकेजिंग, रैपिंग,
डिफरेंस इन क्वालिटी डिजाइन, कैसी डिजाइन है, कौन सा कलर यूज करा है, कौन सी थीम है, क्या स्टाइल है, इन सारे कारणों की वजह से डिफरेंट होता है एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से। सबसे पहला था कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड वी हैव डिफरेंशिएशन इज बेस्ड अपॉन द कंडीशन सराउंडिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि क्या, दिस implies that the firm offer to their customer supplementary and other services along with the sale of the product। जैसे हमने कोई सामान खरीद लिया, उसके बाद की हमें जो सर्विस मिल रही है आफ्टर सेल सर्विस, क्या गारंटी होगी, क्या वारंटी है, कितना हमें फ्री सर्विस मिलेगी। कोई हमने एक्टिवा खरीद ली, कोई गाड़ी खरीद ली सपोज, तो हमें उसके बाद कितनी फ्री सर्विस मिल रही है, कितने साल की हमारे पास गारंटी वारंटी है, कितना हमें सस्ता पड़ा प्रोडक्ट, ये सारा कुछ हम देख के लेते हैं। तो सेकंड क्या आता है डिफरेंस में, कंडीशन सराउंडिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमने प्रोडक्ट जो खरीदा है, जिसकी बिक्री हुई है, उसकी हम क्या क्या उनको कस्टमर्स को जो है सप्लीमेंट्री सर्विस देते हैं सेल्स के साथ। जैसे हमने कुछ फ्री में गिफ्ट दे दिया, मैं अवन खरीदने गई एक दुकान से, तो एक दुकान में ऑफर था कि वो अवन के साथ मुझे हेयर ड्रायर फ्री देंगे, और दूसरी दुकान में ऐसा कोई ऑफर नहीं था। तो मैं किस दुकान के प्रोडक्ट को चूज करूंगी जिसके अंदर मुझे डिस्काउंट में, एक तो डिस्काउंट भी मिल रहा है दोनों दुकान में, और दूसरी दुकान में एक फायदा और है क्या, कि मुझे उसके साथ एक चीज फ्री मिल रही है, तो मैं उसी दुकान पे जाऊंगी। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। दिस सर्विस इंक्लूड होम डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स, फ्री होम डिलीवरी है तो हम उस वेबसाइट से मंगाएंगे, क्रेडिट फैसिलिटी है, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स सोल्ड, गारंटी ऑफ रिपेयर्स, ये सारी कुछ चीजें भी मैटर करती हैं। अब हम चैम्बरलिन ने क्या बोला है हम वो भी देख लेते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ चैम्बरलिन, the conditions surrounding the sale of the product include the convenience of the seller's location, seller जो है बेचने वाला दुकानदार वो किस जगह पे लोकेटेड है, the general tone, वो किस तरह से बात करता है, क्या उसकी बात करने का सलीका उसका अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, वो कस्टमर से अच्छी तरह बात करता है या नहीं करता, कैरेक्टर ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट, हिज वे ऑफ डूइंग बिजनेस, किस तरह से वो बिजनेस करता है, क्या उसके में मैनर्स हैं, एटिकेट हैं बिजनेस करने के, हिज रेप्यूटेशन फॉर फेयर डीलिंग, बाजार में उसकी रेप्यूटेशन कैसी है, कि वो कैसा फेयर डीलर है या नहीं है, एक कस्टमर से ज़्यादा चार्ज करता है, एक से कम, कर्टसी, efficiency and all other things which attract his customer either to himself or to those employed by him, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सेकेंडली जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का टॉपिक था उसमें हमने देखा कि आफ्टर सेल सर्विस और जो सेलर है उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इधर सेलर किस आवाज़ में बात करता है, कैसे उसके में एटिकेट है, क्या वो फेयर डीलिंग करता है नहीं, उसके अंदर कर्टसी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एडिशनल पॉइंट है ये। थर्ड क्या लिखा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेस्ड अपॉन, 4 पॉइंट्स हैं इधर। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे, सेकंड इज सेल्समैनशिप, थर्ड इज पब्लिसिटी एंड फोर्थ इज प्रोपेगेंडा। दिस इज नोन एज सेल्स प्रमोशन। इन चारों चीज का हम अगर मिश्रण कर दें तो बनता है क्या, सेल्स प्रमोशन। Product differentiation based upon advertisement, salesmanship, publicity and propaganda. This is known as sales promotion. Okay. For example, some of the buyers rightly or wrongly feel that Hamam soap is different from Lux or Rexona. Usha fan is different from Orient or Bajaj fan. Actually speaking, those products, though differentiated, are relatively close substitute for each other. Differentiation has been brought about the firms through advertisement, publicity and propaganda. देखो यहाँ लिखा क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने ये लिखा है कि बायर जो खरीदने वाले लोग होते हैं, जो हम सब कंज्यूमर्स हैं, वो सब सही या गलत हम ऐसा सोचते हैं कि हमाम साबुन जो है वो लक्स से अलग है, या फिर रेक्सोना साबुन जो है वो डिटॉल से, या फिर वो विवेल से अलग है। हम सबके अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं। किसी को लक्स साबुन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है, किसी को उसको रोज की स्मेल सूंघना पसंद है, किसी को डव अच्छा लगेगा क्योंकि वो मॉइस्चर करके देता है स्किन को। तो सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, इसलिए सब लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे ये साबुन नहीं ये साबुन पसंद है। फ्रेग्रेंस की वजह से उनके जैसे बॉडी किसी की ड्राई हो जाती है तो वो कैसा ग्लिसरीन वाला साबुन यूज करना पसंद करेंगे,
ये सब कारण होते हैं। कोई कंज्यूमर ये सोचेगा कि उषा का फैन जो है वो डिफरेंट है ओरिएंट से, या फिर बजाज फैन है वो डिफरेंट है ओरिएंट से। तो ये सब क्यों आती हैं ये सारी चीजें? क्योंकि हम सबका जो माइंड है वो डिफरेंट वे में काम करता है। Actually speaking, those products, though differentiated, are relatively close substitute for each other. Products जो कि replace हो सकते हैं एक दूसरे से, कब replace होंगे? जब इनका प्राइस क्या है बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाए। जैसे कोई कंज्यूमर ऐसा है जिसको लक्स साबुन पसंद है, जिसको रेक्सोना थोड़ा कम पसंद है, तो वो लक्स को ही प्रेफरेंस देगा। अब होता क्या है कि लक्स वाली जो कंपनी है वो प्राइस इतना इंक्रीज कर देती है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत इंक्रीज कर देती है, तब कंज्यूमर क्या करेंगे, स्विच ओवर कर लेंगे रेक्सोना पे। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया लक्स वाली कंपनी ने, तो कंज्यूमर क्या सोचेंगे कि थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ाया है तो मैं इतना एक्स्ट्रा प्राइस दे दूंगा, लेकिन मैं लक्स को ही प्रेफरेंस दूंगा। तो ये सारा कुछ होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये जो डिफरेंट लाती है प्राइस के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर, ये कौन होता है? ये और कोई नहीं है, फर्म करती हैं। कैसे करती हैं? तो एडवर्टाइजमेंट देती हैं, अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करती हैं, प्रोपेगेंडा बनाती हैं कि हमारा ही प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है मार्केट में। इस सारे कारणों की वजह से जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेल्स प्रमोशन, इसलिए इसको बोलते हैं कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो प्रमोशन करा गया है मार्केट के अंदर, जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, कस्टमर जो है वो सोचे कि इनका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, उनके कंज्यूमर कस्टमर बिल्ड हो जाए। इन सारे कारणों की वजह से वो करते हैं क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें। इससे रिलेटेड हमारा आता है थर्ड टॉपिक जो कि है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, मैंने यहाँ लिखा है, सेलिंग कॉस्ट इज ए कॉस्ट। किस टाइप की कॉस्ट है? जो कि इनकर करती है कौन? इनकर करती है फर्म, जिससे उनकी सेल्स में इंक्रीज आए। यही पॉइंट हमने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में भी देखा था। क्या देखा था कि सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? इस टाइप की कॉस्ट जो कि फर्म इनकर करती है, जिससे उनकी सेल्स बढ़े। कौन कौन सी इनकी सेल्स बढ़ने के कारण हो सकते हैं? जैसे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दी, कुछ प्रमोशन कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो इससे क्या होंगे, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएंगे उनके प्रोडक्ट की तरफ और उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, विलिंगनेस उनकी हो जाएगी। Under perfect competition, each firm produces an identical products and there is perfect knowledge of the market. Therefore, selling cost does not occur. Perfect competition के अंदर क्या बोला गया है कि perfect competition में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, कि बायर और सेलर दोनों को क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के बारे में कि कितना प्राइस चल रहा है, कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बिक रही है। तो क्या है, कंज्यूमर जो है वो क्या होता है, भोंदू नहीं बन जाता, और सेलर जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। इसकी वजह से इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो होता ही नहीं है। मोनोपोली में देखते हैं, देयर इज ओनली वन फर्म हुज प्रोडक्ट हैज no close substitute. As such, here also selling cost become unnecessary. फर्स्ट में तो अननेसेसरी है ही, इनकर होती ही नहीं है। मोनोपोली में भी यही होता है। क्यों? क्योंकि एक ही सेलर है, एक ही बेचने वाला है, तो वो जितना भी प्राइस चार्ज करेगा वो कर सकता है, लोग उसको खरीदेंगे। लेकिन इधर मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और हमसे हमारा सामान खरीदें। जैसे सोप हो गया, कोई एक सोप है, डव सोप है, उसने एडवर्टाइजमेंट करी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्मूथ स्किन देता है। दूसरा क्या बोलेगा कि मेरे सोप से अगर तुम नहाओगे तो तुम एकदम फ्रेश फील करोगे, ठंडा महसूस करोगे, सिंथॉल हो गया। लक्स क्या बोलेगा कि मेरा जो है वो एकदम अच्छी फ्रेग्रेंस देता है, रोज की फ्रेग्रेंस देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या है, अलग अलग माध्यम से वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अलग अलग आइडिया है सबके, अलग अलग ब्रांड है। बट अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर इज अ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ईच वन प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। सारी फर्म जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट क्या है, प्रोड्यूस करती है, which are relatively close substitute for each other, therefore it becomes essential। ये क्या है, एसेंशियल बन जाता है कि वो फर्म्स जो है वो सेलिंग कॉस्ट को इनकर करें और अपने प्रोडक्ट को दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से डिफरेंट बताए, जिससे कंज्यूमर उनका बेस बिल्ड हो और उन पे ट्रस्ट करे, एंड देन ग्रेजुअली वो क्या करेंगे, प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच इनकर टू इंक्रीज सेल्स। इट इंक्लूड्स मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है हम वो देखते हैं। सबसे पहला इंक्लूड क्या है, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिसिटी करना, जैसे रेडियो पे,
टेलीविजन पे, जैसे हम रोज देखते ही हैं, स्लाइड्स, न्यूज़पेपर्स पे, पोस्टर्स, अट्रैक्टिव पैकेजिंग देना, गिफ्ट प्रोवाइड करना, कूपन्स प्रोवाइड करना, पॉपअप्स देना ऑन इंटरनेट, ये सारी कुछ चीजें क्या होती हैं, सेलिंग कॉस्ट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेलिंग कॉस्ट बोला जाता है, जो कि एक फर्म इनकर करती है टू इंक्रीज देयर सेल्स बाय मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट थ्रू पब्लिसिटी like radio, television, slides, newspaper, poster and attractive packaging. They also provide gifts or coupons and they also put pop-ups on internet. So that was the concept of existence of selling cost, जो कि perfect competition and monopoly में exist नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ monopolistic competition में ही होती है। Now fourth point is different prices for differentiated products. Each firm tries to differentiate its product from that of the other product in regard to quality, design, color, peaking, etc. यहाँ पे peaking नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पैकेजिंग। क्वालिटी में डिफरेंट होती है प्रोडक्ट, किसी की क्वालिटी अच्छी होती है, कोई इंफीरियर क्वालिटी की होती है, कोई प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या होती है, बहुत प्रीमियम लगती है, किसी प्रोडक्ट की डिजाइन बहुत बेसिक होती है। कोई एक कंज्यूमर है जिसको पिंक कलर अच्छा लगता है तो वो पिंक साबुन उठाएगा, ना कि ग्रीन कलर का। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेफरेंस अलग है। और पैकेजिंग, ऊपरी दिखाव कैसा है, उससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब आप छोटे बच्चों को दिखाओगे कि ये एक बुक है कि एक बुक है, तो क्या वो मैथ्स की चूज करेगा या फिर वो ड्राइंग बुक चूज करेगा? ऑब्वियसली ड्राइंग बुक। क्यों? क्योंकि उसके जो ऊपरी दिखाव होता है बहुत कलरफुल, बहुत अच्छा से दिखाया हुआ रहता है। तो इसी की वजह से क्या है, डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं। These differences may be real और imaginary. ये differences real या फिर imaginary रह सकते हैं, क्योंकि ऊपरी दिखाव के कारण ऐसा तो है नहीं कि अंदर का कंटेंट भी अच्छा हो, नहीं ऐसा तो नहीं रहता। But the fact remains that the consumer comes to regard the product of one firm as superior to that of other firm. लेकिन ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? कंज्यूमर का दिमाग ही डिसाइड करता है ये सब, कि उसको क्या चूज करना है और किसको कैंसिल आउट करना है। कंज्यूमर डेवलप ए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस और लाइकिंग फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कंज्यूमर की जो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है उसी के कारण ये सारा कुछ डिसाइड हो पाता है। सम ऑफ द कंज्यूमर डेवलप ए लाइकिंग फॉर से हमाम सोप। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि लेट्स सपोज हम ऐसा सोचते हैं कि कोई एक कंज्यूमर है जिसको हमाम सोप अच्छा लगता है, और कुछ कंज्यूमर ऐसे हैं जिसको रेक्सोना पसंद है, और कुछ ऐसे हैं जिसको लिरिल पसंद है। वैसे ही कुछ कंज्यूमर ऐसे होंगे जिनको ओरिएंट फैन अच्छा लगेगा, कुछ को उषा फैन अच्छा लगेगा एंड कुछ को क्रॉम्पटन एंड सो ऑन। जब ये सारा कुछ डिसाइड हो जाता है, वंस दिस हैपन द फर्म्स गेट ए पार्शियली इंडिपेंडेंट मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। तब क्या होता है, फर्म जो है उनका थोड़ा सा मार्केट जो है वो पार्शियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो यानी कि क्या है, वो स्लाइटली अपने प्राइस में चेंज ला सकते हैं। राइवल कंपनी के अलावा वो हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर कंज्यूमर को क्या है कि एक चीज से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, लेट्स सपोज कि उसको डव साबुन से बहुत लगाव हो गया, तो क्या करेगा कंज्यूमर, थोड़ा सा प्राइस अगर फर्म बढ़ाएगी भी तो उसको वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पसंद है वो। लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकती। अगर बहुत इंक्रीज कर दिया तो कंज्यूमर डव को छोड़कर डिटॉल पे चला जाएगा। Once this happen, the firms get a partially independent market for its product and can charge even a slightly higher price than that of its rival. Rival मतलब उसकी competitor वाली कंपनी। That is why we find different prices prevailing for different brands of soap, toothpaste, electric fans and etc. इसी सारे कारणों की वजह से हम बाजार में जाते हैं तो हमें दिखता है कि अलग अलग टूथपेस्ट जो है उसके अलग अलग दाम होते हैं। एट दी एंड काम क्या है, हमारे दांत को साफ करना। लेकिन फिर भी कुछ कुछ के प्राइस थोड़े हाई रहते हैं, कुछ कुछ के लो रहते हैं। जैसे कौन कौन सी कंपनियां हैं, हमने मालूम ही होगा, पतंजलि आती है, सेंसोडाइन आती है, कोलगेट आता है, ओरल भी आती है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोल ओवर प्राइस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, समवॉट मार्केट पावर। कुछ कुछ हद तक मार्केट में पावर रहती है कंपनियों के पास कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा दाम चार्ज कर सकती हैं। ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फर्म्स हैव सम डिग्री, कुछ डिग्री तक
They can control over their price, unlike in perfect competition where firms are price taker. लेकिन perfect competition की तरह नहीं है. perfect competition में क्या होता था कि फर्म को जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर वो एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता था. They were price takers, and here in monopolistic competition they can charge little bit higher price than that of their rival company due to their goodwill, their customer base that is right now prevailing in the market. Example, coffee shops like Starbucks and local cafes have the ability to set their price somewhat independently due to their unique offering and brand identity. We all are aware कि Starbucks के प्राइस कैसे होते हैं, हाई होते हैं ज़्यादातर लोकल कैफे से. कई हद तक तो ऐसा ही देखने को मिलता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो यूनिक है, ऐसा कस्टमर सोचते हैं और उसकी एक ब्रांड वैल्यू भी है मार्केट में. इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है, कंट्रोल रहता है प्राइस पे कुछ कुछ फर्म्स का. समवॉट मार्केट पावर, पूरी पावर नहीं है मोनोपोली के जैसी, लेकिन कई हद तक पावर है. 6th है ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट. फर्म्स जो है मार्केट कभी भी मार्केट में आ सकती हैं, कभी भी मार्केट को छोड़ के जा सकती हैं. फर्म्स कैन आइदर एंटर और एग्जिट द मार्केट रिलेटिवली easily. This flexibility ensures that long-term economic profit are zero. Long-term में profit कैसा होता है? Zero. Because new firms are attracted to profitable market and losses drive firms out. वही गोल गोल घुमा के बात बोल रहा है जो कि perfect competition में बोल रहा था. कौन सी बात? कि परफेक्ट कंपटीशन में भी यही बात बोली थी कि जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉफिट कर रहे हैं, तो दूसरी फर्म्स क्या होती है, अट्रैक्ट हो जाती है कि क्यों ना हम भी प्रॉफिट कमाएं, तो वो एंटर होती है. प्रॉफिट सब फर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है. फिर और फर्म्स आती हैं तो क्या लॉस इनकर करने लगती हैं. कुछ फर्म ऐसी होंगी जो लॉस की भरपाई नहीं कर पा रही, उनकी वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करेंगी, मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी एंड देन फिर से नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने लगेंगी फर्म. तो यही सारा कुछ चक्कर गोल 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 घूमता रहता है. दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. फर्म्स कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट रिलेटिवली इजीली. This flexibility ensures that long-term economic profits are zero because new firms are attracted. नई फर्म अट्रैक्ट होती हैं प्रॉफिट की तरफ और वो एंटर होती हैं. एंड जो पुरानी फर्म्स है अगर उनको लगता है कि वो लॉस इनकर कर रही हैं तो वो फर्म्स क्या करती हैं, मार्केट को छोड़ के चली जाती हैं. एग्जाम्पल, ऑनलाइन रिटेलिंग प्लेटफॉर्म लाइक एटसी करके एक जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वेयर न्यू सेलर कैन स्टार्ट देयर शॉप्स रिलेटिवली इजीली. जो कि उसमें क्या होता है, अलग अलग टेम्पलेट्स बिकते हैं, एडिटिंग होती है, अलग अलग चीज़ें का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें रिटेलर जो होते हैं वो अपने स्किल्स को शो करते हैं और उससे पैसे अर्न करते हैं. लेकिन मैंने ये दिखाया है कि फर्म्स जो क्या है, सेलर्स जो हैं, जो डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हो गए, वो सब क्या अपना जो स्किल है वो सेल कर रहे हैं, वो मार्केट में कभी भी आ रहे हैं. और किसी को अगर वो ऐप नहीं पसंद आ रहा तो क्या कर रहे हैं, लोग छोड़ के चले जा रहे हैं. ये मैंने एक इजी एग्जांपल लिया है. ऑनलाइन रिटेलिंग प्लेटफॉर्म लाइक एटसी वेयर न्यू सेलर्स कैन स्टार्ट देयर शॉप्स रिलेटिवली इजीली एंड फर्म्स कैन एग्जिट द मार्केट इफ दे आर नॉट प्रॉफिटेबल. अगर किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो एग्जिट कभी भी छोड़ के जा सकता है उस एप्लीकेशन को, उस प्लेटफॉर्म को. ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के. ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कंट्रोल ओवर प्राइस, देन डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. फिर हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है. हमने 3 फैक्टर्स देखे जिस कारणों की वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट अलग है, भिन्न है. एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी फर्म्स, ये सारे कुछ 6 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे. एंड सबसे पहले हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. So I hope this question is crystal clear to all of you guys. And अगर आज की वीडियो अच्छी लगी so please hit that like button and subscribe to my channel given below.